Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Varun Pradhan presenting the daily news review for 23rd December 2022. So guys, before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Well, dear viewers, in the previous video, we asked you a few questions. So let's see what are their solution. Question number 1 was, the National Mathematics Day is observed on which date? And the correct answer to this question is December 2022. That is the birth anniversary of ace mathematician Srinivasan Ramanujan. So to commemorate his contribution, we celebrate National Mathematics Day on 22nd December. Alright, another question was, India's first and world's second infantry museum has been inaugurated in, and the right answer to this question is Madhya Pradesh. So if you are preparing for Madhya Pradesh PCS exam, this is very crucial fact to remember. Alright, now let's proceed and see what is there in the news. First news is quite intimidating one, as the cases of Omicron variant of COVID-19 are increasing globally. पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का इफेक्ट देखने मिल रहा है, जो अब एक फिर से चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है. ठीक है, पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन शुरू हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बात कही है. इसके अलावा उन्होंने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी की, जिसमें उनसे पूछा गया कि इंडिया की प्रिपरेशन कैसी है कोविड-19 को लेकर के. ठीक है, ये किया गया है. साथ ही साथ स्टेट्स को भी ये डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा, मेडिसिन, वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह से रिलेटेड सारी जो तैयारियां हैं उनको ऑडिट कर लिया जाए, उनका परीक्षण कर लिया जाए, ताकि हम भविष्य में आने वाली ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार रह सकें. ठीक है, वी हैव all witnessed that situation of havoc during the second wave of pandemic. So ऐसी situation फिर से रिपीट ना हो, इसको लेकर ये पूरा आर्टिकल है. ठीक है, साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है रैंडमली 2% इंटरनेशनल अराइवल्स की टेस्टिंग के लिए. ठीक है, पहले जैसा हो रहा था कोविड के टाइम पर कि रैंडम सैंपलिंग की जा रही थी ऐसे लोगों की जो विदेशों से इंडिया आ रहे हैं उनकी. ठीक है, तो इस चीज़ को फिर से शुरू किया जाएगा, है ना. और कुछ देशों के नाम भी आप याद रखिएगा जो यहाँ पर टेबल में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है. जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है आदि, है ना. तो ये सारे कंट्रीज़ के नाम आपको मगअप नहीं करने, बट ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि इन सारे देशों में इसके केसेस का नंबर बहुत बड़ा हुआ. ऑलराइट, सो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. आई बिलीव देयर इज नथिंग so much important in that, but since it is an article related to health, so we try to cover it up. And also we would request you all to take good care and adopt all the necessary precaution required for COVID. All right, guys, you can boost your preparation for UPSC civil service exam and MPPSC state service exam by joining batches at Rouse Academy for Competitive Exams. We have separately dedicated faculty for UPSC and MPPSC exam. So give wings to your preparation. Join our batches now. Alright, so another news is coming from Rajya Sabha, where the upper chamber gave nod to add more communities to the ST list, and these two communities hails from Tamil Nadu and Karnataka. Alright,
You have to remember the names of these tribes which may be asked as a direct question. So first is Kurivikaran Hill tribe and another is Nari Koravan tribe from Tamil Nadu and Beta Kuruba community from Karnataka, which is also synonymous with Kadu Kuruba tribe of the same state. Kadu Kuruba is already listed as a scheduled tribe, but Beta Kuruba was not. So now Rajya Sabha has approved to add these three tribes in scheduled tribe list. Alright, the bill was already passed by Lok Sabha and now it is also approved by the Rajya Sabha. Now as per the procedure, President will give his assent and enlist these tribes in the scheduled tribe list. Alright, इसमें एक ज़रूरी बात प्रोसीजरल लेवल पर ज़रूर हुई है जो हम समझ लेते हैं. ऑपोजिशन ने ये कहा है कि बार बार अलग अलग ट्राइब्स को ऐड करने के लिए अलग अलग बिल लाकर पार्लियामेंट की प्रोसेस को क्यों कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है. बेटर तो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ले आया जाए और जो भी लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐड कर दिया जाए. बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में इस तरह की न्यूज़ बहुत देखने मिली हैं जिसमें कई कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है. हालांकि इसके जवाब में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी ने जवाब दिया कि हम सेपरेट बिल इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि ये इंटेंट हम अपनी दिखा पाएं, हम अपनी अप्रोच बता पाएं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को लेकर इनकम्बेंट गवर्नमेंट क्या अप्रोच रख रही है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है यूएनएससी से म्यांमार के इशू पर वोट करने से. ठीक है, म्यांमार के इशू पर वोट करने से इंडिया ने एब्सटेन किया है और ना सिर्फ इंडिया बल्कि दो और इम्पोर्टेंट वर्ल्ड पावर चाइना और रशिया ने भी एब्सटेन किया है. ठीक है, आपको पता ही होगा कि म्यांमार में एक मिलिट्री रिजीम अभी इस्टेब्लिश है. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका कू कर दिया गया, उसका तख्ता पलट कर दिया गया और एक मिलिट्री गवर्नमेंट म्यांमार में इस्टेब्लिश हो गई. लेकिन इसको लेकर इंडिया, रशिया और चाइना ने वोटिंग करने से एब्सटेन कर दिया है. ठीक है, जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की रुचिरा कंबोज, उन्होंने कहा कि हमारा कमिटमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर है, साथ ही साथ हम म्यांमार के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हम उनकी वेलबींग के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. इसीलिए हम नहीं चाहते कि यूएन इस पर कोई भी सैंक्शन एक्सेट्रा लगाए, बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इसका सॉल्यूशन हम खोजने की कोशिश करेंगे. ये बात रुचिरा कंबोज जी ने कही है. ठीक है, ये बात इसको आप याद रखिएगा, है ना. जो इंडिया के डिप्लोमेटिक बिहेवियर्स को सब्सटेंशिएट करता है. ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ना. ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. ठीक है, हालांकि इस पर्टिकुलर स्टेप को बहुत सारे ह्यूमन राइट एडवोकेट्स ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं दिखाया है ना. स्टैंड दिखाना चाहिए था, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की ये बात करते हैं और एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ये सारी बातें कही गई हैं, है ना. बस यही महत्वपूर्ण बिंदु इस आर्टिकल से रिलेटेड हैं जिनको आप याद रखिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जिसमें ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए
सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन स्कूल्स में ही दी जाएगी, ठीक है। गर्ल्स एजिंग फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स विल गेट सर्वाइकल कैंसर जैब्स थ्रू स्कूल्स ओनली, ठीक है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो, ठीक है, जिसमें सर्विक्स जो होता है, लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस दैट कनेक्ट्स टू वेजाइना, उसका कैंसर है, और जो ऑर्डिनरीली 9 to 55 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की महिलाओं में पाया जाता है। फाइन। एंड द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन और कैंसर is the long term infection, and that is usually transmitted through sexual intercourse, etc. And the virus which is responsible for this kind of infection is human papilloma virus, which is also known as HPV. So please remember these important points. And for this cervical cancer, the Serum Institute of India has developed a vaccine called Sarvavac. इसका नाम भी आप याद रखिएगा। और सार्वावैक को DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। ये इंडिया की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलो वैक्सीन होगी, QHPV, जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करेगी, किससे? सर्वाइकल कैंसर से। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात आप ये समझ लीजिए कि स्कूल्स का ही क्राइटेरिया क्यों रखा है, या हम अदर वर्ड्स में कहें कि उन महिलाओं को वैक्सीनेशन कैसे दिया जाएगा जो कि स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट जल्दी प्रोग्राम बनाएगी, एंड इफ ऑल गोज वेल this may be included in the national immunization program. Let us see how it develops, but we can only make apprehensions about this. Fine. थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं इस वैक्सीन का सिग्निफिकेंस। तो देखिए, ये जो वैक्सीन है ये VLP पर बेस्ड है, वायरस लाइक पार्टिकल पर बेस्ड है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है ना। और इससे होता यूं है कि एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं HPV के अगेंस्ट, ठीक है। सो ये बहुत इफेक्टिव है, और ना सिर्फ HPV वायरस L1 के अगेंस्ट, बट ऑल्सो टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होने वाली है, ठीक है। मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, तो हम इसे भी समझ लेते हैं। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन का मतलब होता है एक ऐसी वैक्सीन जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन से। एंटीजन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स या एलिमेंट्स जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, है ना, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, इन सबको हम एंटीजन कहा करते हैं, ठीक है। और DGCI का अप्रूवल अब सार्वावैक के लिए मिल गया है ना। तो अब बहुत बल्क में जो है इनको गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, और पॉसिबल है कि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी एडअप कर दिया जाए, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. So guys, now it is the time for current oriented one-liners. National Farmers Day is observed on December 23rd. It is also known as Kisan Divas. Fine. And it is celebrated to mark the birth anniversary of former PM Chaudhary Charan Singh. Alright, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है. Rajya Sabha passed the Prevention of Piracy Bill, which provides for death penalty and lifetime imprisonment for criminal involved in piracy. So very strict and stringent punishments are given to curb the problem of piracy in this particular bill.
The new type of coronavirus has been named Omicron BF7. This BF7 infection is identified in 3 people of Vadodara and Ahmedabad of Gujarat. Kala Pani, the story of the first king who was abducted, written by Mr. Rajendran, a retired IAS officer who served as Tamil Nadu Cooperative Society Election Commissioner, has been awarded Sahitya Akademi Award for 2022. Sahitya Akademi Award is considered as the most prestigious literary award in India, which was usually given for the contribution in Indian languages, but now it is also given in contribution for English language as well. Alright, so kindly make a note of all these facts. And now it is the time for quiz. So question number 1 was, National Farmers Day 2022 is observed on 9 December, 19 December, 23rd December or 29th December. And another question is, in which year Fukushima nuclear disaster occurred? 2009, 2010, 2011 or 2012. So dear viewers, if you know the answer, please let us know in the comment box. If you don't know the answer, please stay tuned with us. We will be revealing these answers in the next video. So thank you so much for watching this lecture till the end. If you like this video, do hit the like button as well. Comment your feedbacks or your doubts if any. Share this video with your fellow aspirants. Subscribe to our channel. You can also follow Rouse Academy Bhopal on various social media handles to get updates related to exam, etc. So have a great day and enjoy learning.